Good morning, everyone. We have already completed our history chapter 1, French Revolution. Today we will study the whole chapter. Again, we'll have a quick revision of it in the form of story, and we can say as a summary so that you remember the things in a sequence and the chapter becomes easy for you. Okay. So let us start with the chapter. Now, as we have already studied that French Revolution is one of the most important events in the history, since from this revolution we got to know and explore and start a type of governance which we call as democracy. And that is why this revolution is considered very important, because people fought against the autocratic monarchy and brought the ideas of liberty, fraternity, and equality. So, how did this all begin? The event actually took place on 14th July 1789 with the storming of the fortress prison Bastille. It was considered the symbol of king's power, and people were very angry on certain events that we'll study in the next few minutes. And these people were so angry that they actually broke and attacked the prison of Bastille, which is considered the power of, you could say, a symbol of king's power. And people demolished it and you can say, freed all the prisoners. There were only 7 prisoners. उनको free कर दिया था. जो guards हैं उनको उन पे अटैक किया था, and it somewhat marked a very big event, because to attack such a big or important monument or the government building was a very big thing at that time. So now, what were the causes of the revolution? So obviously there were many causes, because such a big event cannot take place for one single cause. So let us first move on to the political causes. If we talk about the political causes, Louis XVI, who came to power in 1774, was a young monarch with the age only of 20 years, and when he was crowned as the king, he found his treasury to be empty, because France was continuously engaged in wars. Now, Louis XVI again helped 13 colonies, American colonies, to gain independence, because they were fighting with Britain for their independence, and Britain was the enemy of France. So, France wanted to take some kind of revenge from Britain in any which way it could. So, it helped France, it helped American colonies, though itself was in lot of financial crisis. Then there were many more things for which money was needed. First of all, France had already taken 2 billion leverage loan. It had taken 1 billion more loan for the wars, and now the interest charge was 10%. Then they had a very magnificent palace of Versailles, जिसका जो maintaining the courts required lot of money. इसके अलावा जो रेगुलर एक्सपेंसेस है फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, लाइक मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट एक्सेट्रा, दिस आल्सो रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी. So because there was financial crisis, you can say the empire was having scarcity of money, so they thought of increasing taxes. अब ऐसे तो टैक्सेस बढ़ाना इज नॉट समथिंग रॉन्ग इफ द कंट्री रिक्वायर्स, बट इनकी सोसाइटी इस टाइप से हम बोलेंगे डिवाइडेड थी कि इट विल रील की व्हाट द प्रॉब्लम वाज. द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स: क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपल. क्लर्जी में होते थे चर्चमैन, नोबिलिटी में होते थे किंग्स एंड मिनिस्टर्स, एंड थर्ड स्टेट में ज्यादातर होते थे स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस, लेबर एंड सर्वेंट्स. थोड़े होते थे peasants and artisans, and very less big businessmen, merchants and court officials. Now what happened after that? The problem was that clergy and nobility, who were only 10% of the population, possessed 60% of the land. और जो clergy और nobility है उनके पास बहुत privileges थी by the birth. चर्च जो है उनको टैक्सेस मिलते थे. नोबल्स जो है वो भी थर्ड स्टेट से फ्यूडल ड्यूज कलेक्ट करते थे. और सबसे बड़ी बात, क्लर्जी एंड नोबिलिटी डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्सेस. दीज वर देयर बर्थ प्रिविलेजेस, कि अगर आप इस फैमिली को बिलोंग करते हो, इस स्टेट के हो, यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस.
Whereas थर्ड स्टेट जो है वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थे और उनके पास सिर्फ 40% ऑफ द लैंड था. They had to pay many taxes. टैक्स उनको देना पड़ता था. 1/10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था which they used to give to church. टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता था. इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे. इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं, जैसे अपने सॉल्ट टैक्स और हर जो कमोडिटी पे टैक्स लगता है वो वाला. इसके अलावा दे ऑल्सो हैड टू पे मेनी अदर सर्विसेज लाइक क्लर्जी और नोबिलिटी के लिए उनके घर पे काम करना, उनके फील्ड पे काम करना, रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम काम करना. मतलब एवरीथिंग समवेयर इट सीम्ड एज इफ थर्ड स्टेट वाले जो हैं उन्हीं की ड्यूटी थी ऑल द वर्क. नाउ ये तो चल ही रहा था, सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रही थी. इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हो गई, फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 1715 में 23 मिलियन थी विच रोज टू 28 मिलियन इन 1789. इतना ज्यादा पॉपुलेशन में तो इंक्रीज हो गया, बट जो इनकी जो ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो इतनी स्पीड पे बढ़ी नहीं, जिसके कारण फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी पर फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी कम थी, जिसके कारण फूड ग्रेन्स के प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए. और जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम नहीं बढ़ी थी, वेजेस ऑफ द लेबरर्स भी नहीं बढ़े थे, जिसके कारण हो गया सबसिस्टेंस क्राइसिस. व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस? व्हेन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड, जो अपने को जीने के लिए बेसिक चीजें चाहिए, अगर वो भी फुलफिल नहीं होती तो ऐसी चीज को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस. और ये जो सबसिस्टेंस क्राइसिस है ये फ्रांस में बहुत कॉमन हो गया था उस टाइम पे. किस टाइम पे? ओल्ड रिजीम. ओल्ड रिजीम क्या होता है? ओल्ड रिजीम इज द टाइम पीरियड बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी बिफोर 1789. Towards the same time we also see the emergence of a new social group जो के in which included traders, merchants, rich people and also various professional class. They were influenced by the fundamental rights which were given to the citizens of USA after they got independence. Then the educated class also believed that no group in society should be now privileged by birth, because western education आ गए थे, ideas of equality and ideas of liberty ये common हो गए थे. तो अब ये बोल रहे थे कि there should be equality and opportunity for all. और ये जो है ना कि somebody is born in one particular family, इसलिए उनको ये वाली privileges मिलनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए. These were the beliefs of the middle class people, which included the traders and the professional class. After that, what happened at this time period, we will also see coming of few great philosophers. This is John Locke. He wrote two treatises of government, जिसमें इन्होंने बोला डिवाइन राइट ऑफ द किंग कुछ नहीं होता है, यानी कोई ऐसा पॉलिसी या ऐसी कोई बिलीफ हमें नहीं माननी चाहिए कि कोई जो है somebody is God has given somebody the power to become king or maybe consensus to become king. ऐसा कुछ नहीं होता. डिवाइन राइट ऑफ द किंग या मोनार्क का एब्सोल्यूट राइट कुछ नहीं होता. द गवर्नमेंट शुड बी ऑफ समथिंग डिफरेंट सॉर्ट. फिर अपने पास आ जाते हैं जीन जैकेसली. तो ही सेड दैट द गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो हमें रूल कर रहे हैं वो एक तरीके से अनसेट कॉन्ट्रैक्ट ही है कि हम वो इसलिए रूल कर रहे हैं ताकि वो कॉमन लोगों की क्या कर सके, वेलफेयर कर सके. एंड देन वी हैव मॉन्टेस्क्यू. ही सेड, ही प्रपोज्ड कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए ना वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिवीजन ऑफ पावर हो बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और ये जितने भी आइडियाज हैं ये बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में डिस्कस हो रहे थे. इसके अलावा लोग कॉफी शॉप्स में और जहाँ भी मिलते थे मीटिंग्स में बैठ के डिस्कस करते थे. जिनको पढ़ना नहीं आता था वो वैसे डिस्कस कर लेते थे. तो इसके थ्रू ये जो आइडियाज हैं लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारे क्या होने लगे, बहुत ज्यादा कॉमन होने लगे. और कॉमन मैन जो है दे वर आल्सो वांटिंग टू हैव अ काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच कॉमन पीपल आल्सो हैव द राइट टू वोट. अब इसी बैकग्राउंड के अंदर अपने को ये समझना चाहिए कि द किंग वाज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मनी, सो ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस. अब यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाने का सिस्टम ये था कि एस्टेट जनरल है इनकी जो असेंबली, उसको आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें तीनों एस्टेट
रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और ये जो तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनके बेसिस पे वोटिंग होती है कि हमें टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो इसमें आए थे 300 रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड स्टेट के, और जो थर्ड स्टेट थे उसके थे 600 रिप्रेजेंटेटिव। और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, दे वर गिवन द चांस टू सिट, मतलब दे वर प्रोवाइडेड प्रॉपर चेयर, whereas जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको दे वर नॉट प्रोवाइडेड एनी सीट, दे वर स्टैंडिंग। अब इनके सिस्टम क्या था वोटिंग का कि वन स्टेट वन वोट, यानी फर्स्ट स्टेट, पूरे फर्स्ट स्टेट का वन वोट है, पूरे सेकेंड स्टेट का वन वोट है, और पूरे थर्ड स्टेट का वन वोट है। So if the king would ask that whether the taxes should be increased or not, obviously first और second state तो yes बोलेंगे, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, they don't give any taxes। थर्ड स्टेट अकेला अगर नो बोलेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2:1 हो जाएगा। So the third state people said, representatives said that we want that this time the voting principle should be each person one vote, but the king did not listen to the people of the third state। थर्ड स्टेट वाले पीपल तो अपने कुछ ग्रीवेंसेस भी लाए थे 40,000 लेटर्स में लिख के, बट nobody, the king did not give any importance to that also। उसके अलावा ये भी हुआ था कि जो थर्ड स्टेट में उसमें ये आर्टिजन्स, पेजेंट्स एंड विमेन वर नॉट अलाउड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट स्टेट। तो अब जब राजा ने रिफ्यूज कर दिया ये वन पर्सन वन वोट वाली चीज, तो थर्ड स्टेट पीपल सेड वी विल वॉक आउट ऑफ दिस असेंबली। उन्होंने क्या किया, वॉकआउट किया वहां से, और वो लोग दे मेट एट द टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेस, जहाँ पे उन्होंने बोला हम लोग अब से सब लोग क्या है, नेशनल असेंबली है, और हम जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे पूरे फ्रांस का, वी विल नॉट मूव फ्रॉम देयर। और इस चीज में इनके जो लीडर्स थे वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, जैसे मिराबियू थे वो जो नोबल, एंड एबेसियस थे वो जो प्रीस्ट, एंड एबेसियस ने एक पैम्फलेट भी लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। नाउ अब एक साइड पे ये लोग बिजी थे फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्ट ऑफ द यूरोप में अनरेस्ट हो रहा था। कैसे कि जो विमेन है उनको लॉन्ग लाइन्स में खड़ा होना पड़ रहा था टू बाय ब्रेड, एंड द यू कैन से बेकर्स जो है वो कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे थे, यानी क्लियरली जो है उनको छुपा के रख रहे थे ताकि जब रेट बढ़ेंगे तब हम बेचेंगे व्हाटएवर, और शॉर्टेज भी थी। तो व्हाटएवर वाज द केस, द विमेन वर वेरी एंग्री। उन्होंने मार्च किया, ब्रेड मार्च, फिर उन्होंने शॉप्स वगैरह को अटैक करके उसके बाद वहां से स्टॉक ले लिया। एट द सेम टाइम ऐसे लगा कि किंग ने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को टू मूव इनटू पेरिस। तो जो कॉमन लोग हैं पेरिस के, उन्होंने मिलिशिया के जैसे ऑर्गेनाइज कर लिया कि नाउ वी विल एक्चुअली समहाउ अटैक द पीपल, यू कैन से द बिल्डिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मोनार्की। तो 14 जुलाई को व्हाटएवर वेपन्स दे हैड, मतलब अब उनके पास जो भी उनके लोकल टूल्स वगैरह थे वो उठाते थे, फाइनली वेंट टू द पैलेस ऑफ दिस प्रिजन ऑफ वेस्टीज, जहाँ पे उन्होंने अटैक किया एंड डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। दिस इज द पोर्शन फ्रॉम विच वी स्टार्टेड आवर चैप्टर। सो दिस एक्चुअली मार्क द स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, एक तो यहाँ पे हो रहा है स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल, दूसरी साइड पे हम देखेंगे कि जो नोबल्स हैं उन पे भी अटैक हो रहा है। कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? कंट्री साइड में एक रूमर स्प्रेड हो गया था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, दे आर landlords are, what are they doing, they are actually sending some kind of hired people and who are asked to destroy the ripe crops of the season। तो जैसे ही ये रूमर फैला तो जो कॉमनर्स हैं उन्होंने नोबल्स के बंगलोज और हाउसेस को अटैक करना शुरू कर दिया और स्टॉक ऑफ ग्रेन्स को लूट लिया, होल्ड कर लिया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे इसमें रिकॉर्ड्स थे कि कौन से पेजेंट्स ने कितना लोन ले रखा है, या कौन सा जो पेजेंट है वो किस टाइप से मतलब ओवर विच एरिया इज दैट द एरिया, किसी ने अगर सपोज मॉर्गेज कर दिया, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इनको बर्न कर दिया गया। और इतना गुस्से में थे लोग कि दे इवन किल्ड लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स एंड मेनी ऑफ द नोबल्स हैड टू फ्ली आउट ऑफ द कंट्री। Now after this what happened,
when the king saw that so much of chaos is being faced by the France and people will not be happy, or you can say people will not anyhow accept the monarchy as it is without any changes. So finally Louis 16 ने बोला okay, I recognize National Assembly और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसको भी I will accept. ठीक है. Now on the night of 4th August 1789 असेंबली ने पास की एक डिक्री जिसका मतलब है लॉ, जिसके थ्रू उन्होंने अबॉलिश कर दिए फ्यूडल टैक्सेस, प्रिविलेजेस ऑफ नोबल्स एंड क्लर्जी, टाइल्स और जो चर्च की प्रॉपर्टी है उसको भी कॉन्फिस्केट कर लिया था. एंड दे सेड दैट जो बर्थ प्रिविलेज है दे विल बी अबॉलिश एंड नाउ वी विल एक्चुअली द फ्रांस विल be governed according to the constitution. Now after that what happened, what was the constitution and what did it include? सबसे पहली चीज है कि ड्राफ्ट जो है it was completed in 1791 by the it was completed in 1791 by the National Assembly. अब जो मेन हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था इसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेशनल असेंबली आपने कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क बिकॉज मोनार्क इज समहाउ वांटिंग टू डू व्हाटएवर ही वांट्स टू. So the first thing is to limit the powers of the monarch. The second thing is the powers were separated and assigned to different institutions, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर्स जो है गवर्नेंस की वो डिवाइडेड होगी. एंड फाइनली जो फ्रांस है इट विल नाउ बी मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. एंड ये जो हम नेशनल असेंबली है इसके बारे में ये देखेंगे कि ये इट विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन. और who were the active citizens? Active citizens were the people who were above the age of 25 years and who were obviously men and who paid the taxes worth of 3 days wages of a worker. ठीक है. So I am repeating again, यानी if you are a man above the age of 25 years and you pay taxes at least equal to 3 days wages of a worker, then you get the voting right and you are called the active citizen. ठीक है. And along with that, the next thing that was that these people, the active citizens, voted the group of electors who were these electors were the people who elected the members of the National Assembly. अब यही वाली चीज जो है ये we understand through this table. Now you all can see this table and we will understand the whole constitution with this table. Okay, now as you can see the table, in this table it is very clear कि active citizen को हमने कर लिया 25 above के men who have the who give taxes equal to at least 3 days wage of a labor were given right to vote and they were called active citizens. Passive citizens वो थे जिनके पास right to vote नहीं था, which included women, children, youth below 25 years and men 25 above वो जो taxes नहीं देते at least 3 days wage of a labor जितना भी. ये लोग एक्टिव सिटीजन मिलकर चूज करते थे 50,000 इलेक्टर्स को और ये जो 50,000 इलेक्टर्स है ये चूज करते थे 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली के. ये लोग फॉर्म करते थे लेजिस्लेचर यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी और इनका टोटल कंट्रोल होता था किंग के और मिनिस्टर्स से. किंग और मिनिस्टर्स से एग्जीक्यूटिव पावर, किंग आल्सो हैड वन वीटो पावर. मतलब few of the laws could not be passed without his consent, मतलब or without his sign, so things were not accepted, मतलब not you can say were not considered law. Then judiciary was also elected by the active citizens. So this was the whole system of the constitution of 1791 and the constitution started with the declaration of rights of man and citizen in which they were given the basic rights of man such as right to life, right to freedom, right to speech and equality before law.
all of these were considered natural and inalienable rights. But the problem was it seemed that these rights were only given to men. During this time, we see there were some symbols which were very, very famous, and these symbols denoted or signified certain, you can say, certain notions, certain ideas. जैसे broken chain का मतलब होता है act of becoming free. Bundle of rods का मतलब होता है strength lies in unity. Scepter का royal power. Snake biting its own tail मतलब eternity. इसके अलावा ये जो red cap है, it was worn by the slaves after becoming free. Winged women का मतलब होता है personification of law. Law tablet मतलब law is equal for all, same for all. Blue, white और red जो है वो national colors of France है. And then these were the things which actually again motivated people to continue with their revolution. Now what happened? We come to the next stage. Constitutional monarchy the one way after we have seen that after the Constitution of 1791, the main thing was that it became the constitutional monarchy. Now we will notice how it becomes a republic. So though Louis XVI had signed the constitution, but he entered into some kind of plotting against the people of France with the king of Prussia and Austria, and he thought that I should bring back the monarchy with the help of these European countries who were also having a fear that ऐसी कोई democracy अपनी country में ना आ जाए. That is why. So National Assembly को obviously when they came to know about this, they were in favor of waging a war against Prussia and Austria, and there were many volunteers who joined the army, and finally they waged a war against the kings and aristocracy all over the Europe. And obviously during the war time, the people of France were facing a lot of difficulties because initially भी ये revolution हुआ था जिसके कारण वैसे भी subsistence crisis था, economic problems थी. ऊपर से again they had to go into this war again with the other countries. So at that time, people were now motivating themselves with the patriotic songs, in which one of the song that we should know is Marseillais, which was composed by Robert de Ile. This is the national anthem of France, and it was sung when people were marching from Marseille to Paris. Now, so remember, this is the national anthem of France, Marseille. Now there were a lot of economic losses, difficulties during the war. The women had to cope up with earning the living also and taking care of the family also, because men went out for waging the fight, or you can say they were engaged in war. So obviously women जो उनको they had to earn also and they had to take care of the family also. Now what happened after this? At this time there were few more political parties or political groups which were emerging, and these were the common people. They were not the rich section of the society, because in the Constitution of 1791, to become an elector or the member of National Assembly, you had to be among the highest taxpayers. तो यानी कि इम्पोर्टेंस जो है उन्हीं को मिलती थी, टैक्स पेयर्स को ज्यादा जो टैक्सेस देते थे. तो एक ग्रुप था जैकोबियन क्लब जो बहुत इम्पोर्टेंट बन गया था इस टाइम पे. इसमें जो है जनरली पुअर पीपल वर इंक्लूडेड, लाइक वॉच मेकर्स और ये जो डेली वेज वर्कर्स है ये वाले लोग, बिकॉज दे ऑल्सो वांटेड टू गेट सम सर्टेन काइंड ऑफ राइट, एंड दे वर डिस्कसिंग द पॉलिटिकल चेंजेस दैट वर कमिंग. एंड ये जो है दीज पीपल, इसमें से जो सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट क्लब है उसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पेयर. अब ये जो मेंबर्स ऑफ जैकोबियन क्लब है ये स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनते थे जिनको बोलते हैं सनफ्यूटिस. ये जो है ये विदाउट नी ब्रीचेस वाले, इनका मतलब ये होता है क्योंकि जो नोबल्स वगैरह थे वो नी ब्रीचेस वाले ट्राउजर्स पहनते थे. तो दे वांटेड टू शो वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम, वी वेयर स्ट्राइप ट्राउजर्स which are not the knee breeches. अब जो जैकोबियन क्लब्स है इन्होंने फाइनली सोचा कि कुछ तो अपने को एक्शन लेना ही पड़ेगा. वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सप्लाईज एंड द हाई प्राइसेस ऑफ फूड. तो अगस्त 10 को उन्होंने क्या किया, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में आए, उन्होंने किंग के गार्ड्स को अटैक किया, किंग को अपने ही पैलेस में हॉस्टेज बना लिया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक असेंबली ने वोट किया कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर देते हैं. फिर उन्होंने इलेक्शन किया. दिस टाइम इन इलेक्शन ऑल द मैन above the age of 21 years, regardless of their wealth,
फॉर द वोटिंग राइट, यानी इस टाइम पैसे की कोई क्राइटेरिया नहीं है वोटिंग में, सिर्फ मैन 21 ईयर्स अबव। 21 सितंबर 1792 को नई इलेक्टेड असेंबली बनी, कन्वेंशन बना नया, उन्होंने बोला हमें मोनार्की नहीं चाहिए इन एनी फॉर्म, और अब फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया। रिपब्लिक यानी इवन द हेड ऑफ द कंट्री इज एन इलेक्टेड मेंबर। लुई 16 जो है और बाद में लेटर क्वीन मैरी एंटोनेट को, दोनों को डेथ की पनिशमेंट दी गई फॉर ट्रेजन, यानी व्हेन यू डू समथिंग अगेंस्ट योर कंट्री, सो दे वर एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। अब अपने नेक्स्ट जो रूलर आ गए वो है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, जो थे उस जैकोबियन क्लब के हेड। बट इसके साथ साथ क्या हुआ, वी विल नोटिस कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो है इनका टाइम पीरियड था और सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। All those whom we saw as being enemies of the republic were arrested, imprisoned, और फिर उनको लगता था जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट है, चाहे उनकी खुद के पार्टी के लोग हो चाहे और कोई नोबल एक्स नोबल्स हो, तो उनको गिलोटिन कर देते थे। गिलोटिन में ये जो गिलोटिन था, इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस जिसमें दो साइड पोल्स होते हैं, बीच में वुडन प्लैंक्स और ब्लेड होती है, और जिसको पनिशमेंट दी जानी होती है, उसका हेड जो है वो वुडन प्लैंक पे रख के उसके ऊपर ब्लेड फोर्सफुली हेड पे जाते हैं, तो उस पर्सन को ऑब्वियसली डीहेड कर दिया जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट था जो इसके टाइम पे दिया जाता था, और डॉक्टर गिलोटिन ने इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो है वो इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गिलोटिन। इसने रॉबस्पियर ने फोर्सफुली भी बहुत चीजें अप्लाई की थी, जैसे मीट और ब्रेड को राशन कर दिया, पेजेंट्स को बोला आपको जो अपने ग्रेन है वो सिर्फ गवर्नमेंट को फिक्स प्राइसेस पे बेचने हैं, इक्वालिटी ब्रेड होगी, किसी को मॉन्जियोर मैडम नहीं बोलना है, सबको सिटीजन बोलना है, चर्चेस को बंद करवा के वहाँ पे बैरक्स और ऑफिस बनवा ली, और ही मतलब ये ट्राई टू वेजेस को जो है वो बोल दिया इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे ज्यादा आप सामान नहीं खरीद सकते, मतलब ही ट्राई टू ब्रिंग इक्वालिटी, ये जो इक्वालिटी ब्रेड है और फूड, हर चीज में ही वांटेड कि इक्वालिटी आ जाए, एंड ही डिड इट वेरी वेरी फोर्सफुली। नाउ बिकॉज ही डिड फोर्सफुली, पीपल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि थोड़ा मॉडरेशन लाओ, बट ही डिड नॉट लिसन टू एनीवन। फाइनली उसके पीपल भी उसके अगेंस्ट हो गए थे, बिकॉज ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट ही वाज वेरी हार्श एंड वेरी रिजिड। So finally he himself was उनके against case चला, he was arrested and he was guillotined in July 1794. So his time period, his rule 1793 to 94 is called as the reign of terror. Now then again a new constitution was formed. अब इसमें लोगों ने वोटिंग राइट जो है सिर्फ प्रॉपर्टी लोगों को दे दिया, जिसके पास प्रॉपर्टी हो वही राइट टू, उनके पास ही राइट टू वोट है। और इसमें क्या था, दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे जो अपॉइंट करते थे, डायरेक्टरी में होते थे 5 मेंबर्स। इन्होंने इसलिए किया था कि पावर एक के हाथ में ना हो, जैसे रॉबस्पियर के हाथ में था तो ही वाज डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर ही वांटेड, बट द प्रॉब्लम वाज कि ये जो 5 लोग थे डायरेक्टरी के और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, जिसका फायदा उठाया नेपोलियन ने, and he was military dictator, he took the power and became the next ruler of the France. अब क्या हुआ, हम देखेंगे कि विमेन का क्या रोल था। इनिशियली विमेन की जो हालत थी बिफोर दी रेवोल्यूशन या बिफोर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, यही था कि दे वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल एक्सेट्रा। सिर्फ जो रिच नोबल की या रिच वेल्दी थर्ड स्टेट की थी वो कॉन्वेंट स्कूल जाती थी, then they had to get married according to their father's wish. उसके बाद ये है कि जो थर्ड स्टेट की विमेन थी वो ऐसे काम करती थी, सेलिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट, किसी के घर काम करना एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मार्केट में ये फ्लावर्स और ये सारी चीजें बेचना। बट आप उन्होंने रेवोल्यूशन जब हुआ तब फ्रांस का, तो इन्होंने ये सोचा था कि है ना वी विल गेट सर्टेन पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि हमने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द रेवोल्यूशन। But the problem was after the revolution they saw that they are just considered as the passive citizen, no right political position, तो दूर की बात है, इनको right to vote भी नहीं दिया गया। पर कुछ चेंजेस इनकी लाइफ में आए थे, जो थे कि स्कूल जो है वो कंपल्सरी हो गई थी, अब वो लोग उनकी कंसेंट के बिना उनकी शादी नहीं होगी, डिवोर्स एनी साइड से भी हो सकता है,
कंसेंसस के साथ, एंड देन उसके बाद सिविल लॉ में चीजें लिखी जाएगी शादी की, दे कैन टेक ट्रेनिंग, दे कैन डू स्मॉल बिजनेस एक्सेट्रा, बट इनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे। फिर हमने पढ़ा था कि इन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्लब्स इन्होंने भी बनाए थे, और जब एक जो फेमस था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, वो सबसे फेमस था, और ये लोग वर्क कर रहे थे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड स्पेसिफिकली राइट टू वोट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट वन ऑफ द लेडी, एंड द लेडी नेम वाज ओलंपी डी गॉर्जियस, जिन्होंने ये बोला था डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन क्यों है, तो उन्होंने और निकाला डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन, और इसमें बोला कि विमेन भी इक्वल सिटीजन है, उनके लिए भी पावर होने चाहिए। बट क्योंकि रॉबस्टर के टाइम पे थी, और रॉबस्टर के टाइम पे रॉबस्टर ने जितने भी विमेन क्लब थे उनको बैन करवा दिया था, और जो भी विमेन ज्यादा ऐसे लगता था पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनको वो एग्जीक्यूट करवा देता था। तो सेम वाज द केस विथ व्हाट हैपेंड विद दिस लीडर ओलंपी डी गॉर्जियस। तो हम फाइनली ये बोलेंगे कि जो विमेन है उनको आफ्टर कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन 1946 में राइट टू वोट मिला, एंड पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड लुक अपॉन देम एज द ग्रेट लीडर्स। अब स्लेवरी जो थी वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस टाइम का। ये जो कैरेबियन वाली एरिया है, मैर्टिन्यू और इन सब पे टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी ग्रो किया जाता था। यूरोपियंस जो है इन कामों में लेबर बहुत चाहिए होता प्लांटेशन में। यूरोपियन सेड दैट वी आर नॉट रेडी टू वर्क इन दीज न्यू प्लेसेस, क्योंकि कैरेबियन अमेरिकाज में था। तो अब इन लोगों ने क्या किया, स्लेव ट्रेड शुरू किया। स्लेव ट्रेड में क्या करते थे, अफ्रीका से स्लेव खरीदते थे, फिर फ्रांस से जाते थे, ये जो बॉडी और नेंटेस है यहाँ से जाते थे, स्लेव खरीदते थे, फिर उनको नॉर्थ अमेरिका में जाके, नॉर्थ अमेरिका यानी यहाँ पे कैरेबियन वाले एरिया में जाके बेच देते थे, और ये लोग प्लांटेशन में काम करते थे। तो स्लेव्स को 3 महीने की लॉन्ग जर्नी और बहुत बैड कंडीशंस में लेके जाते थे। तो जो ये ट्रेड होता था, ये होता था बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका एंड द कैरेबियंस यानी अमेरिका। तो रिमेंबर, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में स्लेव ट्रेड होता था, इसलिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोलते थे, और इसी के कारण ये बॉडी और नेंटेस जो है ये इतने ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस हुए थे। स्लेवरी जो है नेशनल असेंबली ने डिबेट तो बहुत बार की, पर है ना लॉ इसके अगेंस्ट इसलिए पास नहीं किया क्योंकि इसके इम्पोर्टेंट मेंबर्स बड़े बिजनेसमैन थे, और वो स्लेव ट्रेड से ही या स्लेवरी के थ्रू ही अपने प्लांटेशन में अर्न कर रहे थे प्रॉफिट, इसीलिए इन्होंने इसके अगेंस्ट लॉ नहीं बनाया। कन्वेंशन जो था रॉबस्टर का, उन्होंने अबॉलिश किया था स्लेवरी को, बट 10 इयर्स लेटर नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया, और फाइनली जो है स्लेवरी अबॉलिश हो गई थी फ्रेंच की कॉलोनीज में 1848 में। तो रिमेंबर दिस डे, स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। फिर क्या हुआ कि रेवोल्यूशन के बाद वैसे तो बहुत सारे चेंजेस आए थे। एक जो मेन चेंज आया था वो था सेंसरशिप का, क्योंकि अब उनके पास हो गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स, ये सब लोग आराम से परफॉर्म कर रहे थे और पब्लिश कर रहे थे, क्योंकि ओल्ड रेजिम में मोनार्की के टाइम सेंसर बोर्ड कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं करने देता था विच वाज एनीथिंग अगेंस्ट द किंग। तो अब दे कुड फ्रीली एक्सप्रेस देयर आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और परफॉर्म भी कर पाते थे, जिनसे सब लोगों को इन चीजों की आइडिया होती थी। देन वी कम ऑन टू द लास्ट थिंग विच इज 1804 में नेपोलियन ने खुद को एम्परर बोला फ्रांस को। इनिशियली बहुत अच्छे चेंजेस लेके आए थे ये यहाँ पे, पर लेटर ऑन बाकी यूरोपियन कंट्रीज जिनको पहले लगता था ये हमारी कंट्री में भी डेवलपमेंट लाएंगे, उनको बाद में लगा ये तो इन्वेडिंग फोर्स हमारी कंट्री पे कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने नेपोलियन के अगेंस्ट भी किए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था और बहुत सारी कंट्रीज पे कंट्रोल कर रहा था। एक वॉर किया और उसको डिफीट कर दिया वाटरलू में 1815 में, पर उसके मेजर्स जो थे काफी अच्छे थे, आइडियाज ऑफ लिबर्टी और मॉडर्न लॉज और बहुत सारे चेंजेस। अब जो आइडिया ऑफ ये हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये सारे आइडियाज ऑफ फ्रीडम और हम बोलेंगे लिबर्टी, ये सारे पूरे यूरोप में फैले थे। बहुत सारी कंट्रीज में फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, सबने इनको एज इंस्पिरेशन लिया। इंडिया में टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने भी इनको एज इंस्पिरेशन लिया।
फाइनली हम देखेंगे मैप वर्क में। देखिए तो सिर्फ 4 चीजें बहुत जरूरी है, 5 चीजें, बॉर्ड्यू, पेरिस, वर्सेल, नैंटेस और मार्सेलिस। तो जो बॉर्ड्यू है, ये बॉर्ड्यू और नैंटेस जो है ये पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, फ्रांस के पोर्ट जहाँ से स्लेव ट्रेड होता था। वर्सेल्स पैलेस ऑफ वर्सेल्स था, पेरिस जहाँ पे स्टॉर्म ऑफ बेस्टिल हुआ था, और मार्सेल जहाँ पे नेशनल एंथम हुआ था। इसको पॉलिटिकल मैप में भी यू कैन सी, नैंटेस और बॉर्ड्यू इंपॉर्टेंट पोर्ट जहाँ से स्लेवरी होती थी, पेरिस जहाँ पे स्टॉर्म ऑफ बेस्टाइल हुआ था, वर्सेल्स पैलेस ऑफ वर्सेल्स, मार्सेल जहाँ से नेशनल एंथम हुआ था। With this we have completed our chapter. I suppose everything is clear. पूरा एक गो में अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में किया है, so you all can go through it nicely. If you have any problem, feel free to ask. And this is it for it. I suppose everything is clear. Now we meet in a next class.